Hi, today we will discuss GMIN paper 2017, code C. If your code was not C, then you can download it from our website, vidyavandi.com. We will discuss the paper in very concise manner. If you want detailed solution, you can refer to again our website, right? So in code C, mathematics section, question number 31. Let's start with question number 31, first question. The question is from differentiation and very easy one. The question was that you have to calculate the value pi by 4 to 3 pi by 4 and dx upon 1 plus cos x. So, as you know, 1 plus cos x is nothing but 2 cos square x by 2. So, we can write it pi by 4 to 3 pi by 4 dx upon 2 cos square x by 2 or sec square x by 2 upon 2 dx pi by 4 to 3 pi by 4 or tan x by 2 pi by 4 to 3 pi by 4. And by placing the value of x from pi by 4 to 3 pi by 4 and doing some little calculation, you can easily get the answer 2. That means option 4 is correct one. Okay, now next question, question number 32. 32 again, it was very easy question. It was from indefinite integration. The question was that you are given in, where in is defined as integration of tan x raised to power n dx for n greater than 1. And you have to given I4 plus I6. And it is given I4 plus I6 is equal to a times of tan x to the power 5 plus b times of x to the power 5 and plus c. Where again c is an integration constant. Then you have to find out the value of a and b. So I4 plus I6 is nothing but integration of tan x raised to power 4 plus tan x raised to power 6 dx. And by simply taking common tan x raised to power 4, we will left with 1 plus tan square x, that means sec square x, and which is the differentiation of tan x. So the integration of this one will be tan x raised to power 5 upon 5 plus c. So by comparing, we can get the value of a as a 1 by 5 and b as a 0. So option 4 is the correct option. Question number 33. In question number 33, you have to given 4 curves and you have to calculate the area. This question is medium 1 because you have to draw a rough shape of all the 4 curves, and after that easily you can identify the desired area. So let's start question number 33. In question number 33, if we draw a rough shape of our curve, the first curve is given x is equal to 0, that means y-axis. And because it is given x is greater than or equal to 0, so our area is lying in the right of the y-axis. The next line is given x plus y is equal to 3. So x plus y is equal to 3. The next curve is given y is equal to x square by 4. So we know the graph of y is equal to x square by 4, it will come something like this. And the last curve is given y is equal to 1 plus root x. So y is equal to 1 plus root x, it will start from y is equal to 1, x is equal to 0, and will go like this. So by checking the inequality, we will get our desired area, bounded area, this one. So to calculate this area, we have to divide our area in 2 parts. First, as you can see easily, this one. Here, upper curve is y is equal to 1 plus root x, and the lower curve is y is equal to x square by 4. And the second one, this. Upper curve is y is equal to 3 minus x, and again lower curve is same, y is equal to x square by 4.
So if we get these 2 point, intersection point, we can calculate the area. So by solving y is equal to 1 plus root x and y is equal to x minus 3 or 3 minus x, we will get this point as x is equal to 1. And by solving the 2 curve, y is equal to x square by 4 and x plus y is equal to 3, this point will come as x is equal to 2. So our area is 0 to 1. Upper curve is, in this case is y is equal to 1 plus root x, that means 1 plus root x, minus lower curve is nothing but x square by 4, so minus x square by 4, plus 1 to 2, in this case upper curve is y is equal to 3 minus x, and again lower curve is same, that means y is equal to x square by 4. So just simplifying it, we will get our area. That will come as 5 by 2. So the correct option is option number 2. Okay, now let's come on the next question, 34. Again, it was very easy question. It is given एक वायनेबल एक्सपेरिमेंट गिवन है आपको, जहाँ अगर हम ग्रीन बॉल की बात करें, अगर गिवन क्या है, ए बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन बॉल्स एंड 10 येलो बॉल्स. If 10 balls are drawn randomly, one by one with replacement, then the variance of number of green balls is drawn is. And you know, the formula of variance for a binomial experiment is nothing but n into p into q, where n is the number of trial of binomial experiment, p is the probability of success, and q is the probability of failure. So here n is 10. P. The variance हमें कैलकुलेट करना है ग्रीन बॉल्स के लिए, तो ग्रीन बॉल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी किसी भी ट्रायल में 15/25 एंड ग्रीन बॉल के ना निकलने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स येलो बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/25. By multiplying these three values, we will get the variance, and it will come 12 by 5. That means option 3 is correct for question number 34. Question number 35. It is from differential equation, and again an easy one. You can solve this differential equation by using the variable separate method, because the two variable dependent or x or y can easily separate. Okay, now question number 35. We can write it as dy upon y plus 1 is equal to minus cos x dx upon 2 plus sin x. दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए आपके, अब इनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका इंटीग्रेशन यू नो ln y प्लस 1, एंड क्योंकि इसका डेरिवेटिव दैट मीन्स 2 प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है, माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो ये फंक्शन अगेन इजीली इंटीग्रेबल है, माइनस ln 2 प्लस sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू 0 डालते ही आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे k की वैल्यू मिलेगी आपको फंक्शन नोन हो गया. उस केस में आप फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एंड आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2. एंड जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 डालेंगे एंड y की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन के अंदर, तो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू एज 1/3. तो करेक्ट ऑप्शन इज option number 3 in question number 35. Okay, now come to the next question, question number 36. यहाँ हमको गिवन है कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट मीन ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ नीटी. जब तक आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर आप खुद से प्रीज्यूम नहीं कर सकते. ये जो कांस्टेंट गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, आपको ओमेगा गिवन है -1 प्लस जेड अपॉन 2. फिर जेड की वैल्यू गिवन है आपको √3 आयोटा, दैट मीन्स ओमेगा इज -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2. एंड वी नो दिस इज ए क्यूब रूट ऑफ नीटी, सो वी कैन ट्रीट एज ओमेगा एज ए क्यूब रूट ऑफ नीटी, एंड बाई यूजिंग एंड सिंप्लीफाइंग इट वी इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट and can find out the value of
k, which will come minus z. That means option 3 is the correct one. Okay, let's come to next question. Question number 37. This question is from vector. Here we have given two known vector a and b. First vector a as 2i plus j minus k, and the second vector is I plus j. Okay. एक थर्ड अननोन वेक्टर c गिवन है हमको, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वी हैव गिवन मॉड c माइनस a की वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन हम 3. Okay, now an angle given between the two vectors c and a cross b, which is given 30, and we have to calculate the value of a dot c. Okay, सबसे पहले तो इस मॉड का यूज़ करते हैं. एज वी नो कि अगर मॉड c माइनस एक गिवन है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप स्क्वायर कर सकते हो. तो वाई स्क्वायरिंग क्वेश्चन नंबर 3 वी विल गेट मॉड c का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट c इज इक्वल टू 9. मॉड a इज नथिंग बट 9, फैक्टर इज माइनस 2k. तो मॉड इज आपका 9, दैट मीन्स यू विल गेट a डॉट c is equal to mod c square upon 2. From this relation it is clear, if we get the value of mod c, we will find our desired value, that is a dot c. Okay, now another relation given where we have given mod of a cross b cross c is equal to 3. So इस relation से we can simplify this relation by mod of a cross b mod of c and sin of a क्रॉस b और c क्रॉस के बीच का एंगल वो हमें ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, दैट मीन्स sin 30 इज इक्वल टू 3. मॉड a क्रॉस b हमें कैलकुलेट करना है. मॉड a क्रॉस b हमें नोन नहीं है, तो मॉड a क्रॉस b अभी इक्वेशन रखते हैं साइड में. a क्रॉस b इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दो वेक्टर गिवन है हमको 2 1 minus 2 1 1 and 0. So this will give us a cross b, and by calculating this determinant we will get a cross b, and after that we can calculate the value of this vector, that means mod a cross b. By placing it here we will get the value of mod c, which will become mod c is equal to 2, and by placing this value in this relation, that means a dot c is equal to mod c square by 2, we will get the value of a dot c, and that will come 2. It means our correct answer is 4, option number 4, and answer is 2, right? Okay, now come to the next question, question number 38. Again, this is a middle level question. Here we have find a circle, even radius of the circle having minimum area which touches the curve y is equal to 4 minus x square and the lines y is equal to mod x. तो दो लाइंस y is equal to mod x से जो रिप्रेजेंट हो रही हैं, दैट मीन्स y is equal to x and y is equal to minus x, इनको टच कर रहा है. और एक गिवन कर्व है पैराबोला आपको y is equal to 4 minus x square, इसको टच कर रहा है. चलिए देखते हैं. Okay, question number 38. y is equal to mod x, यानी कि y is equal to x and y is equal to minus x and y is equal to 4 minus x. ये दो कर्व हमें गिवन है. तो कोई भी सर्कल जो मिनिमम एरिया का होगा और इन तीन कर्व को, कर्व 3 मीन्स y is equal to x, y is equal to minus x and y is equal to 4 minus x स्क्वायर को टच करेगा. तो वी नो कि अगर एक पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल के ऊपर, तो y is equal to x और y is equal to minus x दोनों को टच कर रहा है, दोनों टेंजेंट होगा सर्कल के ऊपर. तो अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए एक पॉइंट से, तो उनका जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास करता है सर्कल के. अब इन दोनों लाइंस का जो एंगुलर बाइसेक्टर है वी नो इट इज y एक्सिस, दैट मीन्स सेंटर डेफिनेटली y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. ये पॉइंट नोन है हमको 0,4.
and it is lying on the curve y is equal to 4 minus x square. Okay. If we consider radius, the radius of the circle as r, circle as a radius r, so we will get our circle like this, touching the two lines and the y is equal to 4x square. So radius is r. So center will become, this distance was 4 and this distance was r. So this distance will be 4 minus r. So center will be 0, 4 minus r. And the radius will be equal to the point C से y is equal to x या y is equal to minus x cube परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर पॉइंट C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, दैट मीन्स 0, 4 माइनस r से इसके ऊपर, तो 4 माइनस r माइनस 0 अपॉन रूट 2 मॉड, it will be equal to r. So by using this relation, we will get the radius of this circle as 4 times of root 2 minus 1. So the correct option will be option number 1. Okay, now again question number 39. This was a easy question. It was from inverse trigonometry. Let's see. In question number 39, we have to find the value of derivative. एक फंक्शन गिवन है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो फंक्शन गिवन है हमको वही गिवन है, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 3x रेज़ टू पावर 3/2. आई पर्पसली इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, एंड 1 माइनस 3x 3/2 whole square. So you can simply see it is nothing but 2 tan inverse x, where the x is 3 into x 3/2. So you can write it as 2 tan inverse 3x 3/2. Now as you get your function fx, you can differentiate it and compare it with root x gx. And so you will get the function gx as 9 upon 1 plus 9x cube. That means the option 3 is the correct one. जो वैल्यू गिवन है आपको x is belonging to 0 to 1/4. If you know inverse, then you know कि tan inverse x 2 tan inverse x कुछ कंडीशन फुलफिल करता है तभी वैलिड होता है. तो फिलहाल उस पर कंसर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है. Now come on the question number 40. The question number 40 is of probability, and again easy one. In question number 40 we have given एक सेट गिवन है जिसमें 11 एलिमेंट्स गिवन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 10. राइट. नाउ क्वेश्चन इज इफ 2 डिफरेंट नंबर आर टेकन फ्रॉम द सेट, 2 डिफरेंट नंबर चूज किए हमने सेट से, then the probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4. That means if we say numbers are a and b, condition है कि a plus b it should be a multiple of 4 and a minus b का mod it should be a multiple of again 4. ठीक है. If we find 0 as a number, so we can get 2 series here. First 0, 4, 8, starting with 0 and taking common difference as 4, as we have to find a number whose difference is multiple of 4. 0, 4, 8 फर्स्ट सीरीज. तो 0, 4, 8 में अगर कोई भी दो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, उनका सम मल्टीपल ऑफ 4 होगा एज वेल एज उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा. तो इस सीरीज में से कोई भी दो नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं 3C2 वेज, दैट मीन्स 3 वेज. And the second series starting from 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, that means 2 6 10. अगेन इस सीरीज से भी अगर कोई दो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो उनका सम एज वेल एज डिफरेंस मल्टीपल ऑफ
10 होगा. तो we will get 2 number as 3C2, that means in 3 ways. उसके बाद अगर हम ऑड और इवन का सिलेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली उनका सम जो है ऑड नंबर होगा मल्टीपल ऑफ 4 का, 2 का ही मल्टीपल नहीं होने वाला है, 4 की बात ही खत्म. ठीक है. या दो ऑड नंबर चूज करते हैं तो उनका डिफरेंस अगर होगा तो उनका सम जो है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा. तो यही दो सीरीज पॉसिबल है जहाँ पे अगर हम इन दो सीरीज से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो नंबर का सम एज वेल एज उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा. तो जो हमारे फेवरेट नंबर हो गए 3 + 3 दैट मीन्स 6 हो गए. And total number of ways, as we have to calculate the, we have to select the number, two different number from the 11 given numbers. So our probability will be 3 + 3 is that means 6 upon 11 C2. That means 6 upon 55. So the correct answer is option number 3. Okay. Next question, that means 41 is for limit. Second chapter in calculus. Again simple one. Cot x minus cos x pi minus 2x का whole cube. And we have to calculate the limit at point x is equal to pi by 2. Here we can do one thing. We can change the variable. We can place t is equal to pi by 2 minus x. बेनिफिट क्या है लगता है ये पूरी वैल्यू जीरो तरह अप्रोच करना शुरू कर देगी. अभी ये वैल्यू जीरो तरह अप्रोच नहीं कर रही है. अभी ये पूरी वैल्यू अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे बात करें और पाई बाई 2 माइनस 2x की अगर बात करें तो ये पूरी वैल्यू आपकी एक क्यूबिक दिख रही है. एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं तो अगर ये रिप्लेस करें या ये वेरिएबल t को रिप्लेस करें x के थ्रू तो x क्योंकि पाई बाई 2 तरफ जा रहा है तो t जो है जीरो तरफ जाना शुरू कर देगा. तो as x tending to pi by 2 t will tend to 0 and the question will become cot pi by 2 minus t minus cos pi by 2 minus t upon ऐसे 2 कॉमन सकते हैं दैट मीन्स 2 क्यूब कॉमन आ जाएगा 8t क्यूब. अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं फेवरेट लगने लगा या अच्छा लगने लगा देखने में. तो सिंपली अगर इसकी बात करें t टेंडिंग टू 0 tan t minus sin t upon 8t. अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं आइदर यूजिंग द सीरीज और बाय सिंप्लीफाइंग इट. तो अगर सिंप्लीफाई यूज करें t टेंडिंग टू 0 sin t कॉमन आ गया आपका 1 माइनस cos t इंटू 8t. तो cos t 1 हो जाएगा sin t अपॉन t आपका अगेन 1 हो जाएगा और 1 माइनस cos t कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर t बाई 2 अपॉन t स्क्वायर 8t स्क्वायर. And by simplifying it we will get the value as 1 upon 16. So the correct answer is option number 4, 1 upon 16. Okay, now come to the next question. That means question number 42. This question is from the Weimel theorem and again easy one. Question number 42. You are given two series here. First 21C1, 21C2 up to 21C10. And the second series is minus starting from tan C1 up to tan C10. If we just add here 21C0 and subtract 21C1. This complete series will be half series. 21C0 till 21C21, there will be 22 terms. And from starting from 0 to 10, there are 11 terms. And we know the sum of the half series is nothing but 2 की power n by 2.
Here n is 21, so 2 की power 21 upon 2, that means 2 की power 20. So the sum of this series will be 2 की power 20 minus 21 C0, that means 1. Minus, and this is the complete series if we just add tan C0 and tan C0 से till tan C tan. We know it is 2 की power tan. So we will get the result 2 raised to power 20 minus 2 raised to power 10. That means option 2 is the correct one. Question number 43. Again, the question is from probability and very easy one. You can easily solve it by making the Venn diagram. Just create the Venn diagram for 3 events and you will easily get the result. Question number 44 is from height and distance, and again very easy question. Okay, 43 just एक बार देख लेते हैं. Question number 43. Event A, B, C. नंबरिंग कर देते हैं कुछ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is 7. तो फर्स्ट इवेंट गिवन है हमको एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इधर ए और बी अकर, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए और बी. तो ए और बी दैट मीन्स 1 + 6, दिस इज ओनली ए एंड बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि बी अकर नहीं कर रही. तो एग्जैक्टली अगर ए की बात कर रहे हैं तो 1 + 6 प्रोवाइडेड बी अकर नहीं कर रही, एंड एग्जैक्टली बी की बात कर रहे हैं प्रोवाइड ए अकर नहीं कर रही, तो 2 + 5. दैट मीन्स 1 + 2 या 1 + 6 + 2 + 5. इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है 1/4. लाइकवाइज एग्जैक्टली बी एंड सी की अगर बात करें तो 3 + 5 एंड 2 + 5. एग्जैक्टली ए एंड सी की अगर बात करें, सॉरी, एग्जैक्टली अगर बी एंड सी की बात करें तो 3 + 6 एंड 2 + 4. एंड एग्जैक्टली ए और सी की अगर बात करें तो 1 + 4 एग्जैक्टली ए एंड 3 + 5 एग्जैक्टली सी. इन सब की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 1/4. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स 7. ये हमें गिवन है 1/16. और इसका यूज करके हमें फाइंड आउट करना है देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 44. हाइट एंड डिस्टेंस, इजी वन. Let a vertical tower, क्वेश्चन क्या है आपका, let a vertical tower AB given है and have its and A on the level ground. एक टावर गिवन है हमको AB, इसका जो पॉइंट A है वो ग्राउंड पे है. Let's see the midpoint of AB. See midpoint given है हमको and PB a point on the ground such that AP is equal to 2AB. एक पॉइंट P गिवन है कहीं ग्राउंड के ऊपर सच दैट AP हमें 2AB के इक्वल गिवन है. तो ले लेते हैं AB पहले, इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं. AB डिस्टेंस 2x हो गई और AP जो है वो AB का भी ट्वाइस है. दैट मीन्स AP आपका 4x हो गया. एंगल BPC गिवन है बीटा, BPC दैट मीन्स ये एंगल आपको बीटा गिवन है. Then tan beta and you have to calculate the value of tan beta. इस एंगल को अल्फा एज्यूम कर लेते हैं. तो ट्रायंगल APC का यूज करके इजीली हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. tan अल्फा विल कम एज 1/4 x/4x. एंड ट्रायंगल ABP जो बड़ा ट्रायंगल है इसका यूज करके हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं. tan अल्फा प्लस बीटा विल बी AB, that means 2x/4x, that means 1/2.
tan अल्फा प्लस बीटा में tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दैट मीन्स 1/2। tan अल्फा की वैल्यू नोन है हमको, tan अल्फा प्लस बीटा नोन है हमको, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जस्ट फाइंड आउट करना है tan बीटा, सिंप्लीफाई करेंगे उसको और tan बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/9, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। Okay, next question is question number 45. It is for conic section and particularly ellipse. तो हमें क्वेश्चन नंबर 45 में सबसे पहले सेंट्रिसिटी दे रखी है, द सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर गिवन है 0,0, इस सेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है हमको 1/2। इफ वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में गिवन है हमको x इज इक्वल टू -4, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट 1,3/2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर एलिप्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो नॉर्मल इक्वेशन निकालना हमको आता है, इजीली निकाल पाएंगे एट द पॉइंट 1,3/2। तो एलिप्स आइडेंटिफाई करना है, ई गिवन है हमको, डायरेक्ट्रिक्स हमको x इज इक्वल टू -4 गिवन है, सेंटर हमको 0,0 गिवन है, हमको पता है एक्सिस ऑफ द एलिप्स जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होती है। अब डायरेक्ट्रिक्स की वर्टिकल लाइन है तो जो आपकी एक्सिस हो गई वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, साथ ही साथ वो ओरिजिन से पास सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास कर रही है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस हमारे कर्व की एक्सिस हो गई एंड सेंटर ओरिजिन है। तो सिंपल सा एलिप्स तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब सिंपली हम जस्ट ए एंड बी का आइडेंटिफाई करना है, जैसे ए एंड बी आइडेंटिफाई होगा हमारा काम हो जाएगा। हमें सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस पता होती है, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है ए वाई ई, तो ए वाई ई की वैल्यू गिवन है हमको, क्योंकि सेंटर से वो डायरेक्ट्रिक्स बीच में यानी कि x इज इक्वल टू -4, ये आपका सेंटर है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स होता है आपका ए वाई, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो गई आपकी ए वाई, और यही वैल्यू गिवन है आपको 4। ए वाई 4 गिवन है, ए नोन है हमको 1/2, यहाँ से हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2। ए नोन है, ई नोन है, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है आपका ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ए नोन है, ई नोन है, इसका यूज करके बी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब बी मिल गया हमको, ए मिल गया, एलिप्स नोन हो गया, एलिप्स नोन हो गया, तो आप इजीली इस पे नॉर्मल की इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, मीडियम लेवल जस्ट नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व थी, अदरवाइज क्वेश्चन आसान था, आपका कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 में जरूर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 46 इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लंबी सी इक्वेशन गिवन है एक, x इंटू एक्स प्लस 1 x plus 1 into x plus 2 and so on till x plus n minus 1 into x plus n। इसकी वैल्यू हमको tan n गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n जो गिवन है यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू कंजुगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, देन n फाइंड आउट करना है आपको। तो टू कंजुगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो सिंपल सा है कि जो डिफरेंस ऑफ द रूट होगा इट विल बिकम 1। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं इस इक्वेशन को x प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर प्लस 1, वेयर आपका r जा रहा है 0 से लेकर n माइनस 1 तक, और अगर सिंप्लीफाई लिखें इसको r प्लस 1 आर माइनस 1 कर लेते हैं, उसको थोड़ा सिग्मा कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो वी कैन राइट इट एज r इज इक्वल टू 1 to n कर लेते हैं, तो x प्लस आर माइनस 1 x प्लस आर इज इक्वल टू tan n।
और इक्वेशन आपकी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस कोविशेंट ऑफ एक्स आर माइनस वन एंड आर, दैट मीन्स 2r minus 1 into x plus r into r minus 1 is equal to tan n. सिग्मा लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एन एक्स स्क्वायर सिग्मा 2r minus 1 एन स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू एन r इंटू r minus 1 इज इक्वल टू tan n. आपको जस्ट सिग्मा r इंटू r minus 1 कैलकुलेट करना है. You know how to calculate it? As you know, the summation of integers, that means 1 plus 2 up to n का whole square, it will equal to sigma n square plus 2 times of our desired result. इसका यूज़ करके हम सिग्मा r इंटू r minus 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और ध्यान रखिएगा यहाँ पर r जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो फर्स्ट आएगा 2 पर, तो 2 से लेकर n तक जा रहे हैं, तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू मिल जाएगा. यहाँ से वो वैल्यू कैलकुलेट करके प्लेस करेंगे, आपको आपकी कोऑर्डिनेशन मिल गई. और फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट, यानी कि रूट्स अगर हम अल्फा बीटा बोलते हैं तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमें 1 गिवन है. एंड हमको पता है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, या अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा. इस इक्वेशन से हमको एन में इक्वेशन मिल जाएगी, इसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो एन स्क्वायर 121 आ जाएगा एंड एन दैट मीन्स 11 आ जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 46. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 मैथमेटिकल लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका. कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में, हमको जस्ट ट्रुथ टेबल क्रिएट करनी है इस स्टेटमेंट की, और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने भी आपकी टेबल में एंट्रीज आ रही हैं सारी ट्रू आ रही हैं. दैट मीन्स दिस इज ए टोटोलॉजी. तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 48 अगेन इजी वन. क्वेश्चन में आपको एक कर्व गिवन है और एक पॉइंट पे आपसे कहा गया है, एक कर्व जो गिवन है आपको वो गिवन है y इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6. Okay. So the normal to the curve, to this curve, at a point where the curve intersect the y-axis passes through the point. That means आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करनी है, आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है और चेक करना है कि आउट ऑफ जो गिवन ऑप्शन है किस पॉइंट से वो नॉर्मल पास करेगा. ओके तो नॉर्मल जिस पॉइंट पे निकालना है एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द y-axis, तो अगर वो y-axis को कट कर रहा है दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 अगर प्लेस करेंगे तो y विल बिकम 1. तो पॉइंट क्या हो गया आपका 0, 1. तो जस्ट करना क्या है, हमें कर्व की इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू दिस कर्व एट 0, 1. तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पॉइंट हमको ऑलरेडी नोन है, हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, और स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएट. इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx मिल जाएगा एट द पॉइंट 0, 1. वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट. m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज़ करके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल नोन हो गया हमको, फुट ऑफ नॉर्मल ऑलरेडी नोन है हमको. इसका यूज़ करके हम नॉर्मल की इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जैसे ही हमें नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई हम ये चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ गिवन ऑप्शन किस पॉइंट से हमारा नॉर्मल पास कर रहा है, एंड विच विल कम 1/2 1/2. दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 49 वाज फ्रॉम द प्रोग्रेशन सीरीज, एंड कुछ एडजस्टमेंट करने थे इसमें, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं था. तो अगर देखें क्वेश्चंस को, आपको गिवन है 9 इंटू 25 ए स्क्वायर, तो उसको ले सकते हैं हम 15 ए का होल स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर
इज इक्वल टू 75 AC प्लस 45 AB एंड 15 BC। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है हमको, ए बी बी सी सी का कॉम्बिनेशन गिवन है। तो अगर कोशिश करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, या हम ए बी सी में कुछ रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का स्क्वायर 2AB उसमें जनरेट होता है। तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 2 इंटू 15 BC, दैट मीन्स इसको अगर इधर लेके आएंगे तो हम एक 9B स्क्वायर ले सकते हैं, एक 25C स्क्वायर ले सकते हैं, और 15BC अगर लेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या उसको हम ले सकते हैं, एक 9B स्क्वायर लिया हमने यहाँ से, एक 25C स्क्वायर लिया, हमारे पास 2 9B स्क्वायर थे, एक ले लिया हमने, तो उसको लिख पाएंगे 9B स्क्वायर 25C स्क्वायर, इधर से इसको लिया है 2 टाइम्स ऑफ 15BC। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 3B माइनस 5C होल स्क्वायर, राइट। ओके नाउ लाइकवाइज ये चला गया हमारा। AB पे आते हैं, सेकंड पे हम एक गिवन है 2 टाइम्स ऑफ 45 AB, एक 15 ले सकते हैं, एक 9B जो बचा हुआ है वो इसका क्लब कर सकते हैं, और फिर से उसको उधर ला के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट विल बिकम 15A माइनस 3B का होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग है आपका 15A स्क्वायर 25C स्क्वायर एंड 75AC मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको उधर लेके सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा 15A माइनस 5C का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 0। एंड एज वी नो कि 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी पॉसिबल है जब वो तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाएं। तो तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाएंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा A, B और C के बीच में। उस रिलेशन या देखें आप, तो फर्स्ट रिलेशन विल गिव हमें 15A इज इक्वल टू 3B, second will become 3B is equal to 5C, and third will give us 15A is equal to 5C। तो यहाँ से हमको ABC का रेशियो मिल गया। इस रेशियो के बिहाफ पे आप ABC कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि B, C एंड A जो 3 नंबर हैं ये AP फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, 3D का क्वेश्चन था। आपको एक पॉइंट P की इमेज कैलकुलेट करनी थी, पर इमेज वो इमेज नहीं देगी, आपको पकड़ने को कैलकुलेट करनी है, एक गिवन लाइन के अलोंग कैलकुलेट करनी थी, एंड उस इमेज से उस गिवन पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। देखते हैं। एक पॉइंट गिवन है आपको P 1 माइनस 2 एंड 3, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट उसके। एक प्लेन गिवन है आपको 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन गिवन है हमको जिसके पैरेलल ये इमेज हमें मेजर करनी है। इस Q, वो Q दे रखी है, देन PQ इज इक्वल टू, तो इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं, और वो लाइन हो जाएगी आपकी x माइनस 1/1, y प्लस 2/4 एंड z माइनस 3/5। अब एक लाइन हो गई आपकी जो एक पॉइंट P जिस लाइन से पास कर रहा होगा, गिवन लाइन के पैरेलल हो गई। तो ये आपकी गिवन लाइन हो गई, हमने एक लाइन ले ली जो पॉइंट P से पास कर रही है, और इस गिवन लाइन के पैरेलल, क्योंकि हमें इमेज इसी लाइन के पैरेलल कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या नाम, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं बाय टेकिंग these 3 वैल्यूज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस पॉइंट को थोड़ी देर को बोल देते हैं पॉइंट R। तो पॉइंट R एज्यूम कर लेते हैं, तो पॉइंट R लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर सकते हैं
lambda plus 1, 4 lambda minus 2, and 5 lambda plus 3. अब पॉइंट आर क्योंकि इस प्लेन में लाई करेगा, तो इस पॉइंट को अगर इस प्लेन के अंदर प्लेस कर दें, सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स जो अननोन वैल्यू लैम्डा वो हमको नोन हो गया, और जैसे ही वो लैम्डा हमको नोन हो गया, हमको पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट मिल गए, हमें डिस्टेंस पी आर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका टॉइस करते हैं हमें डिस्टेंस पी क्यू मिल जाएगी, जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बासवर्ड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। फिफ्टी वन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है और जस्ट cos 4x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos 4x ये हमें फाइंड आउट करना है। जो रिलेशन गिवन है हमको 5 of tan square x minus cos square x is equal to 2 times of cos 2x plus 9। जैसे कि हम करते हैं हमेशा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो कोशिश करते हैं पूरी इक्वेशन को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो cos 2x cos square x में कन्वर्ट हो जाएगा, cos square x ऑलरेडी गिवन है, tan स्क्वायर लिख सकते हैं हम sin square x अपॉन cos square x, और sin स्क्वायर को फिर से हम 1 माइनस cos square x में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बेटर इस पूरी इक्वेशन को हम cos square x में कन्वर्ट कर लें। तो 5 sin square x दैट मीन्स 1 माइनस cos square x अपॉन cos square x माइनस cos square x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos 2x लिख सकते हैं हम 2 cos square x माइनस प्लस 9। पूरी इक्वेशन cos square x में कन्वर्ट हो गई। cos square x को t एज्यूम कर लेंगे, तो t में कोऑर्डिनेट मिल जाएगी जहाँ से हम t की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। t मिल गया मीन्स हमको cos square x की वैल्यू मिल गई। तो अगर cos square x की वैल्यू यहाँ से कुछ कोऑर्डिनेट से निकल के आ गया आपकी, तो cos 2x नथिंग बट 2 cos square x प्लस 1, दैट मीन्स इस t की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, तो 2t स्क्वायर प्लस 1, और cos 2x निकल के आ गया, तो cos 4x इज 2 cos square 2x प्लस 1। इस cos 2x की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, हमें cos 4x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड इट विल कम माइनस 719। तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 52, next question, it is from the function। एक रिलेशन गिवन है आपको, फंक्शन रिलेशनशिप गिवन है, और एक फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखते हैं क्या करें, क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 52, fx गिवन है आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन गिवन है, इज सच दैट a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 3 आपको। a प्लस बी प्लस सी मीन्स f1 गिवन है आपको 3, एंड एक रिलेशनशिप गिवन है हमको f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी f1 गिवन है और एक रिलेशनशिप गिवन है, तो पहला काम तो यही करते हैं, y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 1 प्लेस कर देते हैं। तो अगर y को 1 प्लेस करेंगे, ये पूरा रिलेशन हो गया आपका f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन प्लस एक्स, और लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बिकॉज f1 इज 3। अब आसान है, f ऑफ x प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ से हम, एफ एक्स नोन है यहाँ से हमको, दोनों को कंपेयर करके कोफिशिएंट को हम ए बी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लिया आपने, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस बी कॉमन ले लिया आपने, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एंड सी माइनस सी आपका 0 हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इन दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट हमको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब ए और बी आ गया आपका, ए मिल जाएगा यहाँ से आपको और बी मिल जाएगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 to tan fn, दैट मीन्स
ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा ए एन स्क्वायर सिग्मा बी एन प्लस सिग्मा सी, वेयर एन इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू नोन हो गई आपको, बी की वैल्यू नोन हो गई आपको, सिग्मा एन स्क्वायर आपको निकालना आता ही है। फॉर 1 to 10 सिग्मा एन निकालना आता है, सिग्मा सी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू आपको नोन हो गई। सिंप्लीफाई करेंगे उसको तो रिजल्ट आएगा आपका 330, दैट मीन्स 330। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now come to the next question. Question number 53. 53 question is again from the chapter 3D. क्या given है इसमें? एक पॉइंट दे रखे आपको 1, 3 एंड -7 और इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी एक प्लेन से। उस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो पास कर रहा है एक गिवन पॉइंट 1, -1 एंड -1 से, राइट। एंड हैविंग नॉर्मल, जो प्लेन का नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द बोथ द लाइंस। दो लाइंस गिवन है हमको, तो लाइंस गिवन है हमको तो हमें उसकी केवल डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो जो L1 गिवन है, एज्यूम कर लेते हैं उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है 1, -2 एंड 3, एंड जो सेकंड लाइन गिवन है L2, उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है हमें 2, -1 एंड -1। ओके, अब जो प्लेन का नॉर्मल है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। इट मींस ये दोनों लाइंस प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। तो अगर दोनों लाइंस प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, यानी कि आपके पास यहाँ दो वेक्टर हो गए 1, -2, 3 एंड 2, -1, 1 जो प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। और हमें अगर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें प्लेन के नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो अगर हम L1 क्रॉस L2 या इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें 1, -2, 3, 2, -1, -1, इसको सिंप्लीफाई करके हमको एक वेक्टर मिल जाएगा जो हमारे गिवन प्लेन के नॉर्मल होगा या नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पॉइंट पता है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता है, प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो अगर इसके यहाँ से ABC आ गए तो हम बोल सकते हैं हमारी प्लेन की इक्वेशन जाएगी AX + BY + C Z + D, वेयर D की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्ट कि जो पॉइंट है 1, -1, -1 वो हमारे प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। और जैसे प्लेन नोन हो गया, प्लेन से इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 was from the determinant chapter, little tricky। क्वेश्चन है आपका इफ S is the set of distinct values of B, B एक वेरिएबल गिवन है आपको और जितनी B की वैल्यूज हैं सब सेट S में स्टोर करी गई हैं। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको। x + y + z = 1 फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, x + ay + z = 1 सेकंड इक्वेशन गिवन है, एंड ax + by + z = 0 ये थर्ड इक्वेशन गिवन है। तो S is the set of distinct values of B for which the following system of linear equation has no solution। इस सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सेट S के बारे में बताना है आपको, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एम्प्टी सेट होगा या सिंगलटन सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा। तो लेट्स चेक। तो अगर हमें पता है कि अगर सिस्टम दे रखा है हमके लीनियर सिस्टम तीन वेरिएबल में, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो पहली कंडीशन तो है कि जो डेल्टा है यानी कि इनके कोएफिशिएंट्स अपना डिटरमिनेंट वो तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एक सॉल्यूशन तो हो गई होगा। तो पहली कंस्टेंट तो यही हो गई कि 1, 1, 1, 1a1 ab1 इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर उसको सिंप्लीफाई करें हम तो a - b माइनस 1 - a एंड b - a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस b से b कैंसिल हो गया और ये पूरा आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1 अगर देखें तो जो हमारी इक्वेशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a इज इक्वल टू 1 प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ a को 1 प्लेस कर देंगे ये दोनों प्लेन आपके ये सेम हो गए।
तो हमारे सिस्टम का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो प्लेन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और ये जो गिवन प्लेन है आपका अगेन यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 हो गया आपका, तो ये दोनों प्लेन आपके ये तो आपके सेम हो गए। ये जो आपका सेकंड प्लेन है वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स पैरेलल हो जाना चाहिए। तो अगर पैरेलल हो जाएगा उस केस में इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ही दो प्लेन्स को पैरेलल करेंगे हम, तो b वैल्यू या b की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी ओनली वन वैल्यू होगी, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1, और v इज इक्वल टू 1 आते ही जो आपके सेट S है उसमें एक ही एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 दैट मीन्स सिंगलटन सेट इज द करेक्ट आंसर। 55 मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते थे। एक मैट्रिक्स एक गिवन है, आपको ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। 12 ए निकालना है, उनको ऐड करके एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सीबीएसई लेवल क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपका जो ऑप्शन 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में था, या इसको बोल सकते हैं मीडियम लेवल क्वेश्चन था, बिकॉज अगेन पहले हमें हाइपरबोला की वैल्यू या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद हमें टेंजेंट की बात करनी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इट वाज फ्रॉम कॉनिक सेक्शन और स्पेशली फ्रॉम द चैप्टर हाइपरबोला। क्वेश्चन में गिवन है हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, एक गिवन पॉइंट है √2 √3 उससे पास कर रहा है, फोकस दे रखा है आपको +-2 0, दैट मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो फोकस एक्सिस पे तो हमारा जो हाइपरबोला है उसकी एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और सेंटर आपका 0,0 हो गया, जो कि मिड पॉइंट ऑफ टू फोकस होगा। एक हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखा है हमको, एक्स एक्सिस की एक्सिस दे रखी है, सेंटर 0,0 हो जाएगा, और दो फोकस दे रखे हैं -2 0 एंड 2 0, और एक पॉइंट पी दे रखा है जिससे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं √2 √3। अगेन क्वेश्चन में करना क्या है आपको, देन द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट पी आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है और फिर वेरीफाई करना है कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 पॉइंट्स आपका जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अगर हाइपरबोला की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1। तो अगर ए और बी आइडेंटिफाई हो गया, हाइपरबोला आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ए और बी आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस नोन है हमको, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज 2ae। तो एक इक्वेशन क्या क्रिएट हो गया आपकी, 2ae इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2, राइट। अगर a नोन हो जाए हमको तो यहाँ से e निकाल सकते हैं, और e निकाल सकते हैं, या e निकल के आ गया तो b निकल के आ जाएगा। तो फोकस करते हैं a निकालने के ऊपर। इसके अलावा हमको पता है कि अगर दो फोकस है s डैश एंड s, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला किसी भी पॉइंट, इस केस में जो हमें नोन पॉइंट है p की बात करते हैं, पी एस डैश माइनस पी एस, इसका जो डिफरेंस होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या बेसिकली रियल एक्सिस के इक्वल होगा, दैट मीन्स 2a के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस पी एस डैश निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, डिस्टेंस पी एस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डिफरेंस को हम जब इक्वल करेंगे 2a के, यहाँ से हमको a नोन हो गया, इस a को इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, e नोन हो गया। इस e का यूज करके फॉर्मूला क्या होता है इसेंट्रिसिटी का, 1 + b² / a²। यहाँ में e नोन हो गया है, a नोन हो गया है, b फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपरबोलिक इक्वेशन मिल गई आपको। अगर हाइपरबोलिक इक्वेशन मिल गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा टेंजेंट को वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 2 √2 एंड 3 √3। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अगेन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो थोड़ा सिंपल, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन अगेन लिटिल बिट इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक वेरल के दे रखा है और के बिहाफ पे 3 वर्टेक्स डिफाइन कर दिए गए हैं, एरिया दे दिया गया है। आफ्टर दैट वो वर्टेक्स कैलकुलेट करके आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल गिवन हमको एबीसी, नाम दे देते हैं,
वर्टेक्स गिवन है हमको फर्स्ट k माइनस 3k 5 कॉमा k and minus k comma 2 has area 28. Then the orthocenter of triangle just k calculate करना है और k calculate होते ही तीनों vertex आ जाएंगे, उसके बाद orthocenter निकालना आसान काम है. तो k निकालने के लिए area given हमको area होता है 1/2 the three vertex that means k minus 3k 1 5k 1 minus k 2 and 1 ये हमें given है 28. What of this one? इसका यूज़ करके हमें k में दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिल जाएंगी और आउट ऑफ टू कोऑर्डिनेट इक्वेशन डेफिनेटली एक आपकी वर्कआउट करेगी, दूसरी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी. वहाँ से हम k की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो मैं सीधे रिजल्ट पे आता हूँ. वी विल गेट k इज इक्वल टू 2 एंड जैसे k इज इक्वल टू 2 हमको मिल गया, k की ये वैल्यू प्लेस किया हमने, ये वर्टेक्स नोन हो गया हमको 2 कॉमा माइनस 6 5 कॉमा 2 एंड माइनस 2 2. तो तीन वर्टेक्स नोन है हमको, ऑर्थोसेंटर निकालना है. तो अगर दो अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें ऑर्थोसेंटर मिल जाएगा हमको. तो BC की अगर बात करें, BC सिंपल सा 5 2 एंड माइनस 2 कॉमा 2 दैट मीन्स ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू 2. तो जो एल्टीट्यूड है AD वो एक वर्टिकल लाइन हो गई आपकी और जो 2 कॉमा माइनस 6 से पास कर रही है दैट मीन्स इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 2. तो ऑर्थोसेंटर का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 2. लाइकवाइज हमको AC का स्लोप नोन है, हम B का स्लोप निकाल सकते हैं जो कि एल्टीट्यूड है. पॉइंट B से साइड AC के ऊपर पॉइंट B से पास करेगा, B की इक्वेशन निकल के आ गई. x इज इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व करेंगे ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे निकल के एंड विच विल कम 2 कॉमा 1/2. दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 58 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अगेन एक इजी क्वेश्चन है आपका. एक वायर दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 20 मीटर. इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर. देन उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है हमको या मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है हमको. तो एक सर्कुलर सेक्टर दे रखा है आपको, एज्यूम कर लेते हैं लेंथ या एंगल थीटा हो गया. तो अगर बात करें एक्चुअली जो पूरा वायर की लेंथ गिवन है वो 20 मीटर, दैट मीन्स इसका पैरामीटर में 20 मीटर गिवन है. तो ये जो है आपका ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसका पैरामीटर r प्लस आर 2r प्लस ये एरिया, ये में 20 गिवन है. और जो मैक्सिमाइज करना है एरिया को तो r और थीटा में एरिया का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. r और थीटा से रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं हम. उस रिलेशन का यूज़ करके ये जो आपका एरिया है जो कि 2 वेरिएबल फंक्शन है, एक r का एक थीटा का, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आपने r को एलिमिनेट किया है तो थीटा के लिए डिफरेंशिएट कर लेंगे, थीटा एलिमिनेट किया है आप r के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको और इजीली फाइंड आउट कर सकते हो r की थीटा की वैल्यू, जिसका यूज़ करके हम इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे. तो सिंपल द क्वेश्चन आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो आसान से. Now come on to the question of 59. फंक्शन का क्वेश्चन गिवन है हमको और फाइंड आउट करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या बाइजेक्टिव है या इन्वर्टेबल बेसिकली है या नहीं है. सर्जेक्टिव बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को, कि फंक्शन अगर ऑन टू है हम कहेंगे सर्जेक्टिव है, अदरवाइज सर्जेक्टिव नहीं है. और इंजेक्टिव बोलते हैं 1 1 को. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि फंक्शन आपका ऑन टू और 1 1 ऑन टू है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 59 जो फंक्शन गिवन है हमको डोमेन उसका r गिवन है -1/2 से 1/2 और फंक्शन गिवन है हमको fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर.
तो अगर डोमेन आ रहा है और चेक करना है कि आपको फंक्शन 1 1 मैनी 1 है, सबसे आसान वे होता है कि उसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और चेक करो कि अपने डोमेन में थ्रू आउट इंक्रीज तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों केस में अगर थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है अपने डोमेन में या डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। तो निकालते हैं एफ डस एक्स विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन आपका एफ डस एक्स पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जब भी एक्स लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, उस केस में ये आपको पॉजिटिव दे देगा, यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर एक्स लाई करेगा आपका 1 से ग्रेटर हो जाएगा या -1 से लेसर हो जाएगा, उस केस में फंक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि अपने डोमेन में फंक्शन इंक्रीज दोनों ही कर रहा है। इसलिए हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका 1 1 नहीं है, दैट मीन्स मैनी 1 है। तो फंक्शन इंजेक्टिव तो नहीं है। सब्जेक्टिव की बात करें तो रेंज फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो रेंज फाइंड आउट करें तो कि मैक्सिमम मिनिमा या अगर ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा का यूज़ करते हैं, उस केस में इजीली इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ डस एक्स क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल रहे हैं +-1 और एंड पॉइंट आ रहा है आपका डोमेन का -∞ से इन्फिनिटी। और अगर एक्स जाएगा आपका इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा या -∞ तक अप्रोच करेगा, इसकी लिमिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 0। ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं इन पे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। क्रिटिकल पॉइंट आपके आ गए -1 एंड 1, तो एफ ऑफ 1 एक्स को अगर 1 प्लेस कर देंगे 1/2, एफ ऑफ -1 एक्स को अगर -1 प्लेस कर देंगे -1/2, एंड जो एंड पॉइंट है डोमेन के एक्स टेंडिंग टू +-इन्फिनिटी पे वैल्यू जा रही है 0 की तरफ। तो एंटायर इंटरवल में अगर इसकी हम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम की वैल्यू की बात करें, तो फंक्शन की जो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गई वो -1/2 एंड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1/2। तो फंक्शन की रेंज होगी आपकी -1/2 से +1/2। और जो बस कोडोमेन गिवन है वो भी आपका सेम गिवन है -1/2 से 1/2। दैट मीन्स फंक्शन आपका ऑन टू हो गया, यानी कि सब्जेक्टिव टू है बट 1 1 नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका 1, सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं। क्वेश्चन है आपका, एक मैन है, इसको नाम दे दिया गया एक्स, हैज 7 फ्रेंड्स, 4 ऑफ देम आर लेडीज एंड 3 आर मैन। ठीक है, तो करते हैं एक सिंपल सा चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगी समझने में हमको क्वेश्चन में। एक मैन है एक्स, 7 फ्रेंड्स हैं उसके, 4 ऑफ देम आर लेडीज, एल बोल देते हैं, तो एल इज इक्वल टू 4 एंड मैन आर 3, एम इज इक्वल टू 3। His wife Y also has 7 friends. 7 friends. 3 of them are ladies. That means L is equal to 3, and M is equal to 4. ये given हमको. Assume X and Y have no common friends. इसमें से कोई भी इन दोनों का कॉमन नहीं है, सब डिफरेंट है। ये 7 डिफरेंट हो गए, ये 7 आपके डिफरेंट हो गए। Then a total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men so that 3 friends of each of X and Y are in the party. तो दो कंस्टेंट हो गए यहाँ पर। फर्स्ट, जो पार्टी को जिस पार्टी में हमें इनवाइट करना है उसमें 3 लेडीज़ और 3 मैन होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दोनों को एक्स और वाई दोनों की 3 फ्रेंड्स उस पार्टी में इनवाइट होने चाहिए। तो केसेस फॉर्म करते हैं। सपोज हमने 3 लेडीज़ को कॉल किया यहाँ पे, तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स 3 होने चाहिए, तो मैन के लिए चॉइस एक ही है कि एक्स के हम 0 फ्रेंड्स को या 0 मैन फ्रेंड को कॉल करें। और क्योंकि 3 लेडीज़ और 3 मैन इन्वाइटेड हैं, तो इसके पास भी ऑप्शन जो है वो ये हो गया, लेडीज़ ऑलरेडी 3 होनी चाहिए, तो 3 को कॉल कर लिया है हमने, तो हम लेडीज़ को केवल 0 को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, मैन 0 होना चाहिए और यहाँ 3 को। एक केस तो ये हो गया। सेकेंड केस, सपोज लेडीज़ हमने यहाँ पे 2 कर दी, टोटल फ्रेंड एक्स के 3 चाहिए, तो इसके लिए चॉइस 1 हो गई। अब 2 लेडीज़ हैं, 3 लेडीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ केवल एक ही चॉइस है 1 एंड 2। थर्ड केस पे आते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 1 था इसलिए ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लास्ट केस 0 कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3 कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। तो ये केस 4 केसेस फॉर्म हो गए।
इस केस में अगर बात करें, हमें आउट ऑफ 4 लेडीज 3 लेडीज सेलेक्ट करनी है, जो हम 4C3 वेज में कर सकते हैं। इन सारी इवेंट के बीच में एंड वर्ड लगा हुआ है कि इस केस में 4 लेडीज सेलेक्ट करनी है, 3 मैन सेलेक्ट करने हैं, एज वेल एडवाइस है हमको 3 आउट ऑफ 3 लेडीज 0 लेडीज सेलेक्ट करनी है, एंड आउट ऑफ 4 मैन 3 मैन सेलेक्ट करने हैं। तो इसका आपका 4C3, 3C0, 3C0 एंड 4C3 चार को मल्टीप्लाई कर देंगे, केस फर्स्ट के नंबर ऑफ वेज निकल के आ जाएंगे। लाइकवाइज केस 2, केस 3 एंड केस 4 इन चारों के नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐड करके हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा, विच विल कम 485। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो this complete our discussion, a concise, very concise discussion. If you want to detailed solution, you can visit PMC website, that means vidyamani.com. ओवरऑल पेपर आपका इजी था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अगर बात करें तो लगभग जस्ट 2/3 क्वेश्चन इजी थे, 1/3 जस्ट मॉडरेट थे। मॉडरेट में डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुछ कैलकुलेशन आपकी थी उसकी बिहाफ पे उसको मॉडरेट को या आपके एवरेज क्वेश्चन कहा जा रहा है, अदरवाइज पेपर आपका ठीक था ओवरऑल। अगर हम सेक्शन की बात करें 11 एंड 12 के पोर्शन की, तो अगेन 12 से क्वेश्चन ज़्यादा थे, अगेन अराउंड 2/3 क्वेश्चन आर फ्रॉम द class 12 and 1/3 from the class 11. That's it. Thank you.